Hello and welcome to this special broadcast from Tokyo. With just a week to go before the biggest sporting event kicks off, the city should have been really buzzing by now. While there are only a few who are excited about the sporting event, the pandemic situation has definitely cast a bigger shadow on the Olympics. With the state of emergency in place, there will be no spectators at the event now. Even then, the COVID situation remains a threat. Recently, there was a huge scare as a hotel housing the Brazilian Olympians was detected among the COVID clusters. The Indian contingent too will be here soon. Here's a report. COVID cluster has been detected in a Japanese hotel in Tokyo, where a dozen of the Brazilian Olympic team members are staying, raising concerns of the virus spreading amongst locals, athletes and officials. 7 of the staff members in the hotel in Hamamatsu City in the southwest of Tokyo have tested positive. The development comes days after the IOC President Thomas Bach promised that the Olympics that are scheduled to begin from the 23rd of this month will be a historic event. 31 members of the Brazilian Olympic delegation are in a bubble inside the hotel. While they haven't been infected, there are several question marks over these so-called Olympic bubbles. Medical experts fear that these bubbles might not be completely tight. The movement of staff surfacing the games could in fact be the reason behind the infection spread. The Olympics are set to begin in a week from now, but it has lost complete public support amid concerns over infection risks and a state of emergency being imposed in Tokyo. Though the organizers have promised strict COVID measures, protests are still raging across Tokyo, calling for the cancellation of the games. 私たちは無観客だから東京オリンピックかパラリンピックができるとは全然考えていません。やはりこのコロナが拡大をしつつある中でね、緊急事態宣言がやっぱ発せざるを得なかったわけだから、それに合わせてやはりオリンピック・パラリンピックを中止することが最大のコロナ対策だというふうに考えますので、もうとにかく即時、オリンピック・パラリンピックの中止を、これからも訴え続けていきたいと思います。Many Olympic delegations are already in Japan ahead of the games. Some of them are training in local towns and some are in isolation. Among the Indians, the sailing team was the first to reach Tokyo. The sailors arrived from their different training bases in Europe. Since they have come directly from Europe, even as the threat of the pandemic surrounds the world's biggest sporting spectacle, all's not lost yet. There will be no foreign tourists in the city, but the organizers are still trying the best to keep the mood of the city afloat. I traveled to one of the official Tokyo 2020 stores, and here's the report. Protests. Rising COVID cases, new variants being reported. Despite all the threats to the Olympics, Tokyo is all set to host the biggest sports extravaganza in a week's time. The state of emergency that has been imposed in the host city has led to the event with no spectators at the venues. Experts have even termed this Olympics as the most unique Olympics ever. Even though there will be no spectators and a lot of restrictions in place, the hope is not totally lost. People are still looking forward to the games. ちょっと1年延びて
盛り上がりが欠けてますけども、ちょっと始まれば楽しみたいと思います。無観客になってしまったんですけれども、ただ、アスリートの方は準備してきているので、すごく楽しみにしています。Regardless of what one thinks, Tokyo 2020 is happening at a historic moment of time, one that many would like to capture and reflect on. The Olympic shops are open around the city, and official merchandise that includes face masks, flags, t-shirts and even the mascot replicas are all available here. A complete ban on foreign spectators has meant lower footfalls. The store owners, however, are quite excited, as with just a week left for the Olympics, a lot of people are now coming to the stores. The host nation looks forward to hosting the Olympics as it boosts their tourism sector. But the Tokyo Olympics are unique, even in that regard. And yet, the organisers are trying to stir up some fresh enthusiasm as the long and unusual road to the Games enters its final leg. Of course, watching the games this year from the stadiums is not an option anymore, keeping in mind all the restrictions and the bans that have been put in place. However, there are several other ways to enjoy and feel the spirit of the Olympics in the city. With Paulami Burman in Tokyo, Bureau Report, India Today. Mirabai Chanu had a heartbreak at the Rio Olympics, but she is more determined and experienced now with a world record under her belt. She can well come up with the goods on the first day of the competition itself. My colleague Rahul Rawat spoke to Mirabai Chanu. Mira, opening day यानी पहले दिन ओलंपिक्स के क्या इंडिया अपना पहला मेडल जीत रहा है और वो जीतने वाली एथलीट क्या मीराबाई चानू है? हाँ, मैं पूरा ऐसे अभी डर भी है क्योंकि पूरा इंडिया के लिए मैं सबसे पहले कंपटीशन करने वाली हूँ, फाइट करने वाली हूँ इंडिया के लिए, तो थोड़ा सा डर भी है मतलब और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि सबसे पहले मुझे ही पूरा भारत मुझे देखेगी तो बहुत ही एक्साइटेड भी हो रही है। पर मेरी तरफ से मैं पूरा कोशिश करूंगी पहला दिन ही इंडिया के लिए एक मेडल लेने के लिए, मेरे अंदर पूरा मैं कोशिश करूंगी पूरा इंडिया की तरफ से। जब भी कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई एथलीट किसी वर्ल्ड स्टेज पे जाता है, पहुंचता है, बोला जाता है कि यार हमारे लिए ये एक हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है, उनके लिए कितनी बड़ी बात है ये? और थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से? हमें पता है कि यार थोड़ा वेट ज्यादा उठा लेती थी बचपन में, तो घर वालों ने कहा जी चलो इससे वेट लिफ्टिंग करवाएंगे, ऐसा कुछ था? लकड़ी जो हम मेरा गांव है इम्फाल से 22 किलोमीटर की एक छोटा सा गांव है, तो इसमें हम साल भर की लकड़ी इकट्ठे करके हम रख देते हैं तो हिल्स में जाके, तो उसी टाइम में मैं बहुत जाती हूँ बचपन में जब वीकेंड होते हैं तो उसी टाइम में मैं जाती हूँ घर के लिए कुछ काम करने, तो उसी टाइम में मैं लकड़ी इतना ज्यादा मतलब उठा के लेके आते हैं, तो सब बोलती थी इतना कैसे उठाई कि आपको, मैं उठा लूंगी यूं करके ऐसा लेके जाऊंगी, तो सब मना भी करते हैं कि इतना छोटे बच्चे हैं तो आप कैसे उठाएंगे, मत उठाओ ऐसा करके, थोड़ा थोड़ा लेके चलो। पर मुझे इतना वो नहीं मानती थी, मैं लेके जाऊंगी मेरा मर्जी है, मैं जितना भी लेके जाओ तो मैं ऐसे लेके आती थी, तो मम्मी बोलती थी कभी एक दिन आप इतना ऐसा उठा सकते हैं तो आपको कुछ गेम्स में, पहले से ही हमारी फैमिली गेम में ही रही है, मेरा 2 भैया है फुटबॉल प्लेयर है, तो मम्मी पापा भी फुटबॉल खेलते हैं वैसे गांव में ऐसा करते हैं, तो लकी है मेरे लिए तो पापा गेम्स में मैं डालना तो नहीं चाहती थी, फिर भी मम्मी ज्यादा पसंद करते हैं वेट लिफ्टिंग जान, तो उसी टाइम तो वेट लिफ्टिंग क्या होते हैं पता नहीं थे, हमारे तो हेवी उठाना ऐसे बोलते हैं, तो मैं भी एक दिन ऐसा मन में आ रहा था हाँ मैं भी कुछ
करना चाहिए कुछ गेम में। और उसी टाइम में कुंजुरानी मैडम की हिस्ट्री भी साथ साथ में पढ़ी थे, हमारी बुक्स में थी स्कूल में, तो वो हिस्ट्री भी पढ़ा था, तो मन में ऐसा लगा था कि हाँ मुझे भी गेम करके मैडम जैसा कुछ बनना चाहिए। It's time for a short break now. On the other side, more news and updates on Tokyo Olympics. Welcome back after the break. For long, Deepika Kumari has been a medal hope for Olympics. But her hope could never be transformed into reality. Will it be different this time? Deepika's outing during the World Cup in Paris was unbelievable. Despite all the odds and the disappointments in the past, Deepika's current form surely makes her one of India's best medal hopes in the Tokyo Olympics. अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है। मैंने बैम्बू बो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बो पे आई थी सर। बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले मुझे। Deepika Kumari of today is more experienced and she may have peaked at the right time. She won 3 gold medals at the Archery World Cup in Paris last month. Not for the first time though, she will enter in Olympics as world number 1. But these games could be a first for her if she wins a medal in archery. While she's a force to be reckoned with in the individual event, the chances of a medal in the mixed event swell, where she'll pair up with her husband, Atanu Das. On the first day of the competition in Tokyo, Deepika will be in action, and it could be a red letter day in the history of Indian archery. And this girl from Ranchi could be the catalyst for the big change. Sports Bureau India Today. As Indians, we are all hopeful that Deepika will be able to put all the big stage jitters behind her and make the country proud. After all, being world number 1 is not easy. Deepika Kumari spoke to India Today about her plans and preparations on Tokyo Olympics. Listen in. दोनों से पहला सवाल जो मेरे को पूछना है, अनदर ओलंपिक्स, दीपिका आप लंदन में थे, आप रियो में, दैट रशिया के खिलाफ वो क्वार्टर फाइनल में, वंस अगेन वी वर ऑलमोस्ट देयर, एंड दिस टाइम इन टोक्यो, बट नाउ द टू ऑफ यू हैव द एक्सपीरियंस, यू हैव द एबिलिटी, आपने वर्ल्ड स्टेज पर मल्टीपल टाइम्स जीत चुके हैं आप लोग। ये एक्सपीरियंस क्या आप लोगों को बेटर चांसेस दे रहा है टोक्यो जाते हुए, एंड हाउ आर द प्रिपरेशंस कमिंग, बोथ ऑफ यू? दीपिका फर्स्ट एंड देन अतनु। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है हमारी। ऑफ कोर्स लास्ट 2 ओलंपिक से बहुत अच्छी है बिकॉज काफ़ी कुछ मैंने सीखा है मेरे पास्ट कंपटीशन से, एंड बहुत कुछ है जो मेंटली मैं काम कर रही हूँ अभी भी, एंड वो भी कंटिन्यू में चल रहा है, और बहुत सारे कॉन्फिडेंस भी गेन किए हैं मैंने। सो बहुत अच्छा एक मोटिवेशन भी मिल रहा है कंपटीशन जीतने से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं जो काम कर रही थी वो एटलीस्ट वर्क हो रहा है, एक्चुअली मैं वो कर पा रही हूँ कंपटीशन के थ्रू। सो काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपीरियंस देता है ये सब कंपटीशन खेल के, थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है। बट यस, एज यूजुअल सारे कंपटीशन अलग होते हैं, सबके सिचुएशन अलग होते हैं, कॉम्पिटिटर पे डिपेंड करता है, कंपटीशन पे डिपेंड करता है सिचुएशन। सो या होप सो जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किए हैं और जिस चीज में मैं काम कर रही हूँ वो आगे मुझे और हेल्प करे। अतनु, अभी जो दीपिका ने कहा यही सही बात है, क्योंकि देखिए अगर आप पेरिस में शूट कर रहे हो या जहां भी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, हम लोग सोशल मीडिया में फॉलो कर रहे हैं, बट ओलंपिक्स के समय हम लोग सब जाके आपके सर पे टूट पड़ेंगे, ऑल ऑफ अस। हम लोग एवरी मूवमेंट ऑफ योर्स विल बी मॉनिटर्ड, आपका इनर 10 विल बी कलेक्टिव वॉल्केनो इन द कंट्री एंड 8 विल बी अ कलेक्टिव मॉर्निंग इन द कंट्री, सो दिस विल पुट प्रेशर, आप लोग दोनों पे ये प्रेशर आएगा। सो आप पहले बताइए, प्रेपरेशन लीडिंग इनटू टोक्यो, हाउ आर यू फीलिंग? एक्चुअली बहुत ही अच्छा, एंड ये जो बीच में लॉकडाउन का गैप हुआ था पूरा सबका लाइफ में, एंड वर्ल्ड वाइड जो लॉकडाउन हुआ था उसके हिसाब से जो हम लोग का ओलंपिक्स जो पीछे हो गया,
उसके बाद काफी उतार चढ़ाव हुआ, क्योंकि बहुत मतलब टूर्नामेंट जो जोन था वो हम लोग का छूट गया था, आदत जो है छूट गया था। तो उसके बाद जब हम लोग पहला स्टेज ग्वाटेमाला खेला, उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा हम लोग का। उसके बाद पेरिस, तो ये 2 टूर्नामेंट बहुत अच्छा हम लोग का एक्सपीरियंस के तौर पे था बिफोर द ओलंपिक्स। ऑब्वियसली प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, और उस चीज को हैंडल ही कर रहे हैं हम लोग, और अच्छा से हैंडल करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि जितना भी डिस्ट्रैक्शन है वो सारा हम लोग पार करके अपना गोल पे अचीव कर पाए। मुझे ये बताइए, आप लोग दोनों में से ज्यादा टेंशन कौन करता है, और दूसरा जब टेंशन अतनु करता है तब दीपिका आप इसको कैसे हैंडल करती हो? टेंशन कौन लेता है? कौन ज्यादा टेंशन लेता है? एक्चुअली मैं ज्यादा टेंशन लेती हूँ जब ये खेलता है तब। अदरवाइज हमेशा ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि वो एक्चुअल में विन करे, और आप पीछे बैठ के देखते हो तो आपको ज्यादा टेंशन होती है, बिकॉज आपको नहीं पता होता है कि क्या चल रहा है, वो क्या मारेगा, सो हमेशा यही होता है। मुझे खेलने पे उतना टेंशन नहीं आता, लेकिन पीछे बैठ के मैच देखने से ज्यादा टेंशन होती है मुझे। सुपर। और अतनु ये बताओ, 3 गोल्ड मेडल 1 वर्ल्ड कप, यार हम लोग ना स्पोर्ट्स स्टार्व्ड कंट्री है, हमारे पास ऐसे वर्ल्ड चैंपियंस आते नहीं है। 3 गोल्ड मेडल जब एक हमारे एथलीट जीतते हैं, उसका एक्सपीरियंस बताओ। एंड आप तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हो, बताओ। बहुत ही अच्छा, मतलब अमेजिंग बोल सकते हैं इन वन वर्ड, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से इस चीज पे काम कर रहे थे, अपना कमियां मिटा रहे थे, और फाइनली जब ये सारा चीज एक साथ आता है, सारा टीम वर्क एक साथ आता है, और सारा मेडल मैचेस भी एक ही दिन था, और दीपिका तीनों में फाइनल्स में थी, मतलब मिक्स में मेरे साथ इंडिविजुअली और टीम में भी। तो ये बहुत एक बोल सकते हैं कि अर्न किया उसने, जो कि इतना साल का उसका मेहनत, एक्सपीरियंस, और सारा चीज थॉट्स कैसे हैंडल करते हैं, सारा प्रेशर को हैंडल करके, और वो तीनों के तीनों जीतना। ऐसा भी हो सकता था कि कोई ना कोई छूट जाए, लेकिन वो प्रेशर को हैंडल करना, ये एक काबिले तारीफ मेरा वाइफ के लिए मैं बोलूंगा। So yeah, it's दीपिका, जब आप ऊपर आ रही थी, आई मीन मैं तब से आपको कवर कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। I mean, to choose the sport and then to do the, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये लगता है, कोई भी एथलीट के लिए, मान लीजिए तेंदुलकर 24 साल इंटरनेशनल क्रिकेट ऊपर रहे, आप लोग भी, आप दोनों, आई मीन यू इन योर केस, आपका डेकेड प्लस आप एक कंसिस्टेंसी से इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, इसका राज बताओ मुझे। what is the point? I mean, are you mentally strong, committed enough? Give me a sense of that, both of you. I mean, both of you, how did you take to the sport, and to continue for a decade at this level is fantastic. वो मुझे पहले दीपिका, फिर आता जिस मोटिव से मैंने स्पोर्ट्स को चुना था, वो मोटिव कंप्लीट होने के बाद भी उसके बाद एक पैशन सा आ गया था इस गेम में। तो आई थिंक वो पैशन है जो कंटिन्यू मैं कर रही हूँ अपने गेम में, और एक होता है ना नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, जो मैं बिलीव करती हूँ कि वो बहुत आगे तक लेके जाता है हर एक इंसान को। तो वो मैं एक फॉलो कर रही हूँ। आई थिंक वही एक रीजन है जो मुझे इस गेम में बांध के रखा है, और ऑब्वियसली मैं इस गेम से प्यार तो करती हूँ बहुत ज्यादा। सो आई थिंक वो वाला एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड मैंने एक पकड़ के, और मैं कंटिन्यू उस चीज को कर रही हूँ। अतनु, टॉक टू मी अबाउट 3 incidents or 2, whatever, in his or your life, and then Deepika can say when you were doubted. सब कोई at some point किसी ना किसी ने तो आप पे डाउट किया होगा, आप डाउन होंगे, मेंटली डाउन होंगे, एंड दैट थम्स डाउन मोमेंट फॉर naysayers, आपने किसी को कि भाई डोंट डाउट मी, मैं दिखाऊंगा, वो ऐसा क्या, आप एक आध मोमेंट आप मुझे बताएं। एक मोमेंट तो ऐसा था जो एकदम अर्ली स्टेज में था, जो 2007 में था। 2007 में टाटा आर्चरी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए मैं ट्रायल दिया था, सिलेक्शन ट्रायल दिया था। तब मैं रिकर्व बो नहीं पकड़ा था, एंड वहां पे मुझे 1 मिनट के अंदर ही रिजेक्टेड कर दिया गया था। 1 मिनट, विदिन 1 मिनट मुझे देखा और रिजेक्ट कर दिया गया। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि यार मेरे में ऐसा क्या कमियां रह गया, या क्या प्रॉब्लम रह गया, जो जिसके वजह से मैं मतलब सिलेक्टेड नहीं हो पाया। तो ये एक था किक, जो उसके बाद मैं अगला 6 महीने के अंदर रिकर्व बो लिया, और पहला टूर्नामेंट खेला सब जूनियर नेशनल जबलपुर में,
और वो सब जूनियर नेशनल चैंपियन भी बना था। वो पहला एक किक था जो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा कैसे, मेरे अंदर ऐसा क्या तो नहीं है। एक ये, और दूसरा एक ये है 2013 में जब मैं अपना जॉब ज्वाइन करता हूँ BPCL में और टाटा आर्चरी एकेडमी से निकलता हूँ। टाटा आर्चरी एकेडमी से निकलने के बाद मुझे जब जॉब इंटरव्यू हुआ था मेरा BPCL में, तो वहां पे मुझे बोला गया था कि यू विल बी द फर्स्ट वन इन BPCL, ठीक है, तो आपके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। अगर 1 साल के अंदर आपने कुछ नहीं दिखा पाया हमें, तो शायद ही आपका जॉब पक्का होगा कि मुझे पता नहीं। तो वो उस टाइम मैंने डायरेक्ट बोला था कि आप मुझे बस जॉब दीजिए, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास बंगाली फैमिली, और मुझे सिर्फ इतना भरोसा चाहिए कि हाँ मंथली मेरे अकाउंट में आ रहा है और मेरा घर चलेगा, बस ये दिलासा मुझे चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा, पीछे मुड़ने का जरूरत नहीं। Deepika, same stories or you a God's child? I mean, a talent, a prodigy, all of us have seen. I'm sure London was a downer because we had built up so much at Lord's. But आपके लाइफ में भी ऐसा डाउन मोमेंट्स, thumbs down मोमेंट्स आया होगा? बहुत सारे ऐसे थे, बट आई थिंक वो आई डोंट नो मैंने वो चीज डेवलप हुआ है या गॉड गिफ्टेड है। मैंने कभी भी उस चीज को ना, मतलब रिसेंटली अभी एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, तो बोले थे वो बोल रहे, मैं नाम नहीं लूंगी, वो बोले दीपिका तुम बहुत अच्छा चल रही थी बट ठीक है अभी थोड़ा डाउन चल रही है, बट कोई बात नहीं, ऐसे करके उन्होंने मुझे कमेंट पास किया। मुझे बहुत बुरा फील हुआ, एक्चुअल में बहुत बुरा फील हुआ कि, और फिर एक क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने जब कोई आपको ऐसे सामने से बोलता है कि दीपिका कर क्या रही है तुम, इतना टाइम स्पेंड कर रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है लाइफ का इतना ज्यादा, फिर भी कोई अचीवमेंट नहीं है। तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना, उसके बाद आप ज्यादा मेहनत करने लगते हो, दुगना मेहनत करने लगते हो, बिकॉज वो आपके अंदर ही एक क्वेश्चन हो जाता है कि क्या कमी है आपके अंदर, आप उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हो। सो मेरे अंदर हमेशा वही चीज है कि कभी भी मैं डाउन फेज फील करती हूँ तो हमेशा मैं अपनी कमियों को स्टार्ट करती हूँ ढूंढना कि ऐसी क्या कमियां हैं मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं डाउन हो रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा टाइम नहीं आया खत्म करने का, या फिर मेरे अंदर वो कैपेसिटी खत्म हो गई है परफॉर्म करने की। सो वो कमियां ढूंढ के मैं फिर उसको फुलफिल करने की कोशिश करती हूँ और फिर मेहनत करती हूँ, एंड देन फिर रिजल्ट आता है, फिर अच्छा लगता है। Are you guys happy? You first, Deepika. Then, are you happy? Are you in that zone, that equilibrium of an athlete where you're about to peak? Is that happening? Yes. 100%. So, in terms of facilities, in terms of everything else, y'all are at Yes. That's great to know. Great to know. Final question. Especially in your sport, actually in all sport, that one shot of an inner 10 might get you a medal. How do you deal with pressure? Deepika, you go first. See, उस मोमेंट पे ना आपको कुछ भी याद नहीं रहता है कि आपके सामने कौन है, आपके पीछे कौन है। आप उस वक्त खुद होते हो, आप होते हो और आपका एरो होता है जिसपे आप एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे होते हो। तो उस प्रेशर में डील करने के लिए सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं अपने बारे में सोचती हूँ, मुझे क्या करना है उसके बारे में सोचती हूँ, और बाकी सब कुछ नहीं रहता है। बस मुझे मेरा टारगेट रहता है याद, और सिर्फ मैं याद रहती हूँ और कुछ भी याद नहीं रहता है। Fabulous. Atanu, we in London, the wind was against us. I mean, that's one of the reasons why we weren't able to manage. Obviously, Lords at that point, they did not have exposure. In Rio, again, the women's team, especially in that Russia match, the wind was against us. Are you guys ready with the climatic factors as well to deal with anything? I don't believe in this. Actually, मैं आंसर खुद ज़्यादा अच्छा। अगर आपको याद हो रियो में हारने के बाद भी अगर मेरा कोई इंटरव्यू आया होगा तो मैं उस टाइम भी जो बोला था अभी भी वही बोलना चाहूंगा कि अगर विंड है तो सबके लिए है, बारिश है तो सबके लिए है। उस चीज में, उस सिचुएशन में हम कैसे हैंडल करते हैं खुद को, वो इम्पोर्टेंट है, और वही आर्चर जीतेगा जो अच्छा से खुद को हैंडल कर पाएगा। दैट्स इट। मैं ये 5 साल पहले भी यही चीज बोला था मैं, अगर अभी भी वही बोलूंगा। तो विंड तो सबके लिए है। इट्स आउटडोर गेम। अगर कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है तो वो हमसे हुई है, ना कि विंड से। विंड तो हमेशा ही रहता है यार, वो जैसे इसने कहा सबके लिए है। हमें उस सिचुएशन में डील करना है और फिर मेडल जीतना है। विंड की उसमें गलती नहीं, गलती हम टीम मेंबर्स की है, खुद की होती है, विंड की कोई नहीं। That's all we have on this show today. More news and updates on Tokyo Olympics will continue as and when they happen. Thanks for watching.